કેમ છો બાલમિત્રો? મજામાં ને? ખૂબ સરસ. બાલમિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વ્યાકરણમાં ચોથો ટોપિક છે ક્રિયા કે કાલ, તે ભણવાનો છે અને સમજવાનો છે. काल का अर्थ है समय. कोई भी क्रिया या घटना होती है तो उसका अपना एक समय अवश्य होता है. કાળનો અર્થ શું થાય છે? સમય. કોઈ પણ આપણે જીવનની અંદર ક્રિયા કરતા હોય કે ઘટના બનતી હોય તો તે દરેકનો સમય નક્કી જ હોય છે. જેવી રીતના કિશોર કલ પાવાગઢ ગયા. બીજું, લડકી इस समय पढ़ रही है. ત્રીજું, हम शाम को बगीचे में जाएंगे. अब इसमें किशोर पावागढ़ कब गया? तो कि कल गया, वो उसका समय था. ત્યારબાદ उसमें है लड़की कब पढ़ रही है, तो कि वह इसी समय पढ़ रही है, ये भी ये उसका समय है. हम बगीचे में कब जाएंगे? तो कि शाम को जाएंगे, तो शाम ने हमने समय दे दिया, इसलिए कल, इस समय, शाम को, ये शब्द क्रमशः गए, पढ़ रही है, जाएंगे ક્રિયાઓ કે સમય સૂચિત કર રહે. આ ત્રણેય શબ્દો છે તે છે અત્યારે હાલમાં કે કરશો કે તે બધી જ ક્રિયાઓ દર્શાવવામાં આવે છે. વ્યાકરણ મેં સમય કો હી કાલ કહેતે હૈ. વ્યાકરણની ભાષામાં સમયને જ કાળ કહેવામાં આવે છે. क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं. क्रिया करता समये એનો સમય, ધારો કે ક્રિયા થઈ ગઈ છે અથવા અધૂરી છે અથવા થઈ રહી છે તો જે દર્શાવવામાં આવે તેને કાળ કહેવામાં આવે છે. કાલ કે ભેદ એટલે કે કાળના પણ પ્રકાર છે. કાલ કે મુખ્ય 3 ભેદે કે કાળના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. કયું? પહેલું છે વર્તમાન કાળ, બીજું ભૂતકાળ और ત્રીજું છે ભવિષ્યકાળ. ત્રણ પ્રકાર છે કાળના: વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય. તો સૌપ્રથમ આપણે વર્તમાન કાળ શીખીશું, સમજીશું. સૌથી પહેલાં સાંભળો તો કે લડકા પढ़ता है, माँ खाना बना रही है, रमा ने पत्र लिखा है. इन वाक्यों में જે શબ્દ નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવી છે ये क्रियाएं वर्तमान अर्थात चल रहे हैं समय को सूचित करती है. आ वाक्यों में पढ़ता है, खाना बना रही है, पत्र लिखा है, आ बधी क्रियाओं થઈ રહી છે, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रिया है. એટલે અત્યારે હાલમાં જે ક્રિયા થઈ રહી છે એટલે તેને વર્તમાન કાળની ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. વર્તમાન સમય કો વર્તમાન કાલ કહેતે હૈ. જે અત્યારે હાલમાં જે ક્રિયા થઈ રહી છે તેને આપણે વર્તમાન કાળ કહેવામાં આવે છે. હવે વર્તમાન કાળ સમજી ગયા કે ચલો અત્યારમાં જે ક્રિયા થઈ રહી છે તેને આપણે વર્તમાન કાળ કહીએ, પરંતુ વર્તમાન કાળના પણ રૂપ હોય છે. એમાં પહેલું રૂપ છે સામાન્ય વર્તમાન કાળ. હવે વર્તમાન કાળમાં પણ રૂપ છે ઘણા. એમાં પહેલું છે સામાન્ય વર્તમાન કાળ. હવે સામાન્ય વર્તમાન કાળ આપણે કોને કહીશું? તો સાંભળો, રમણ વિમલ કે સાથ સ્કૂલ જાતા હૈ. બીજું, બાગ મેં ફૂલ ખીલતે હૈ. બરાબર સાંભળો. રમણ નામનો છોકરો છે તે વિમલ નામના છોકરા સાથે સ્કૂલે જઈ રહ્યો છે. बाग में फूल खिलते हैं, बगीचानी अंदर फूल खिले छे. इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में क्रिया होना सूचित करती है, परंतु इनसे कार्य का पूर्ण या अपूर्ण होना प्रकट नहीं होता. क्रिया के इस रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं. जो શું કહે છે કે આ વાક્યોની અંદર ક્રિયા થાય છે એટલે કે થઈ સૂચિત કરે છે કે એવું થાય, પરંતુ થઈ રહી છે અથવા થઈ ગઈ છે એવું દર્શાવવામાં આવતું નથી. રમણ જે વિમલની સાથે સ્કૂલે જાય છે, બગીચાની અંદર ફૂલ ખીલે છે, એ બધી ફક્ત ક્રિયા દર્શાવે છે, પરંતુ અત્યારમાં ફૂલ ખીલી રહ્યું છે અથવા ખીલી ગયું છે
સ્કૂલે રમણ વિમલની સાથે જઈ રહ્યો છે અથવા જતો રહ્યો છે, પહોંચી ગયો છે એવું દર્શાવવામાં આવતું નથી, એટલે તેને સામાન્ય વર્તમાન કાળ કહે છે। सामान्य वर्तमान काल की मुख्य क्रिया के अंत में ता ती ते का प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान कालना जे वाक्य होय एना अंतमां एटले के छेल्ले ता ती ते आ त्रण शब्दोनो वधारे उपयोग करवामां आवे छे। हवे एनो बीजो भाग छे अपूर्ण वर्तमान काळ। जो वर्तमान काळ छे पण अपूर्ण एटले के पूर्ण थई गयुं नथी, अधूरुं छे, पूरुं नथी एटले अधूरुं। एना वाक्यो छे नवीन दौड़ रहा है, नीता खेल रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। जो बराबर समझो, आ वाक्यों में सूचित करती है कि नवीन के दौड़ने, नीता के खेलने और पिताजी का अखबार पढ़ने का अभी पूरा नहीं हुआ। आ त्रणेय वाक्यों शू दर्शावे छे कि नवीन दौड़ी रह्यो छे, नीता रमी रही छे अने पप्पा छापू वाँची रह्या छे, परंतु हजी एमनुं आ त्रणेयनुं कार्य पूरुं थई रह्युं नथी, चालू ज छे। ये क्रिया कार्य की अपूर्णता का बोध कराती है। एटले आ जे क्रिया छे चालू ज छे, पूर्ण थई नथी, एटले अधूरुं ज काम छे, पूरुं थयुं नथी, एटले तेने अधूरता बतावी रही छे। क्रिया के इस रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रियानो जे आ रूप होय तेने अपूर्ण वर्तमान काल कहेवामां आवे छे। अपूर्ण वर्तमान काल की मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। ये रहना सहायक क्रिया के रूप है। अपूर्ण वर्तमान काल होय तेना वाक्योना अंतमां रहा, रही, रहे आवा शब्दोनो वधारे उपयोग थई रही छे। आ बधा तेना सहायक रूपो छे। त्यारबाद त्रीजो छे वर्तमान काळमां के पूर्ण वर्तमान काळ। पूर्ण वर्तमान काळ आपणे कोने कहीशुं? अपूर्ण सौथी पहेला तो आपणे वर्तमान काळ शुं छे समज्या, पछी सामान्य वर्तमान काळ शुं छे ए पण समजी गया, अपूर्ण एटले के अधूरो वर्तमान काळ शुं छे ए समज्या, अने हवे समजवानुं छे के पूर्ण वर्तमान काळ शुं छे। तो एमां पण वाक्य आप्या छे, माँ ने खाना बनाया है, आपकी पत्रिका मिल गई है। ऊपर के वाक्यों में क्रिया के रूप सूचित करते हैं कि खाना बनाने और पत्रिका मिलने का काम पूरा हो चुका है और इन्हें पूरा हुए अभी अधिक समय नहीं बीता है। क्रिया के इस रूप को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आ बंने वाक्य में शू दर्शाववामां आव्युं छे कि क्रिया पूर्ण थई गई छे अने हजी क्रिया पूर्ण थई एने वधारे समय थयो नथी, एटले तेने पूर्ण वर्तमान काल कहेवामां आवे छे। समजाय छे ने बाल मित्रों? जो तमने न समजाय तो वारंवार विडियो फरीथी जोई लेवो। આપણે વર્તમાન કાળ વિશે તો સમજ્યા, હવે આવે છે ભૂતકાળ। उन्होंने आम खाए, दादी ने कहानी सुनाई थी। जो आ बे वाक्य आपेला छे, ये क्रियाएं में आ बन्ने वाक्यों क्रिया में शू छे? खाने और सुनाने का काम बीते हुए समय में होना सूचित करती है। जो आ बन्ने वाक्यनी अंदर शू दर्शाववामां आवे छे क्रिया के आम खावानी क्रिया अने कहानी सुनावानी क्रिया। आ बन्ने जे क्रिया छे ते अमुक समय जतो रह्यो छे एमां थई गई छे ते दर्शाववामां आवे छे। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं अने जे समय जतो रह्यो छे ते समयने भूतकाल कहेवामां आवे छे। अतः ये भूतकाल की क्रिया है। एटले आ बन्ने वाक्यों में जे क्रिया बताववामां आवी छे ते भूतकाळनी क्रिया छे। जे समय चाली रह्यो छे ते वर्तमान काल छे, जे समय जतो रह्यो छे ते भूतकाळ छे। पानु फेरवीए। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं। जो जेम वर्तमान काल में 3 भेद होय छे, सामान्य, अपूर्ण अने पूर्ण वर्तमान काल।
એવી રીતના ભૂતકાળમાં પણ 3 રૂપ છે, સામાન્ય ભૂતકાળ, અપૂર્ણ ભૂતકાળ और પૂર્ણ ભૂતકાળ। સૌપ્રથમ આપણે સામાન્ય ભૂતકાળ લઈએ તો એના વાક્યો બે આપેલા છે। ઉદાહરણ, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, मित्र ने मुझे उपहार भेजा। बराबर सांभळजो। आ वाक्यों अंदर क्रिया सूचित करती है कि कार्य सामान्य रूप से कुछ समय पहले हो चुका है। इनसे कार्य के अपूर्ण रहने या पूर्ण होने का बोध नहीं होता। बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुई क्रियाओं के ऐसे रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। शू कहे छे कि आ बंने वाक्योनी अंदर क्रिया अधूरी नहीं रही अने पूर्ण थई गई छे। एटले आ बंने वाक्योनी अंदर पुस्तक पढ़ डाली एटले ते घणा टाइमथी मैं वाँची नाखी छे। मुझे उपहार भेजा एटले घणा टाइम पहला मने उपहार मळी गयो छे। एटले आ बंने वाक्योमां क्रिया अधूरी रही नथी, अपूर्ण पण रही नथी अने पूरी पण हमणां ज थई नथी एवुं बताववामां आव्युं छे। एटले तेने सामान्य भूतकाळ कहेवामां आवे छे। हवे बीजुं छे एमां अपूर्ण भूतकाळ एटले शुं, तो एमां पण 2 वाक्यो आपेला छे कि शरद पाठशाला जा रहा था। बीजू, मीना सो रही थी। बराबर समझो बाल मित्रों, शरद पाठशाला जा रहा था, मीना सो रही थी। इन वाक्यों में सूचित होता है कि जाने और सोने का कार्य पूरा नहीं हुआ था, वह अपूर्ण था। भूतकाल के ऐसे क्रिया रूपों को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सरस स्कूले जाय छे पण जतो हतो त्यां जईने पहोंची गयो एवुं बताव्युं नथी। मीना सूती हती हजू सूती ज रही छे अथवा सूईने उठी गई छे एवुं दर्शाववामां आव्युं नथी। एटले वातनी जे क्रिया छे ते अधूरी दर्शाववामां आवे छे, एटले ते अपूर्ण भूतकाळ कहेवामां आवे छे। अपूर्ण भूतकाल की मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। जेवी रीतना अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रही, रहेनो उपयोग थाय छे एवी ज रीतना तेनी क्रियानी साथे अंतमां अपूर्ण भूतकाल में रहा, रही, रहेनो प्रयोग थाय छे। त्यारबाद छे पूर्ण भूतकाळ। एमां पण 2 वाक्य आपेला छे, आपणे बराबर समझीए। समीर ने चित्र बनाया था, शिल्पा कॉलेज गई थी। इन वाक्यों में क्रिया भूतकाल की है। ये क्रिया रूप सूचित करते हैं कि चित्र बनाने और कॉलेज जाने का कार्य पूरा हो गया था। ये क्रियाएं कार्य की पूर्णता का बोध कराती है। शू कहे छे कि आ बंने वाक्य में शू छे कि चित्र बनी गयुं छे अने कॉलेज जती रही छे, ते कार्य ते क्रिया पूर्ण थई गई छे एनुं आपणने ज्ञान करावे छे। भूतकाल के ऐसे क्रिया रूपों को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाळना आवा वाक्यों पूर्ण भूतकाल कहेवामां आवे छे। पूर्ण भूतकाल के क्रिया रूपों के साथ था, थी, थे का प्रयोग होता है। जेटला पूर्ण भूतकाळना रूपोना वाक्यो होय, क्रियाना होय वाक्यो, तो तेनी साथे छेल्ले अंतमां था, थी अथवा थे का ए शब्दोनो उपयोग करवामां आवे छे। तमे बालमित्रो वर्तमान काळ भूतकाळ समझ्या। हवे आपणे लेवानो छे त्रीजो तबक्को भविष्यकाळ। बराबर तमे सांभळजो। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। उसके भी 3 रूप है। जो जे भविष्यमां समय आववानो छे, आवी नथी गयो अथवा जतो नथी रह्यो, तो आववानो छे तेने आपणे भविष्यकाळ कहीए छे। एमां पण 3 रूप छे, सामान्य भविष्यकाळ, पछी अपूर्ण भविष्यकाळ अने पूर्ण भविष्यकाळ। तो सौप्रथम आपणे सामान्य भविष्यकाळ लईए। नीरज गीत सुनाएगा, हम राष्ट्रगीत गाएंगे। इन वाक्यों में क्रिया के रूप सूचित करते हैं कि सुनाने और गाने के कार्य अभी शुरू
नहीं हुए हैं, उनका शुरू होना अभी बाकी है, वे आने वाले समय अर्थात भविष्य काल में होंगे। क्रिया के इस रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। बराबर सांभळो कि नीरज गीत गाशे, संभळावशे आपणे बधाने, अने આપણે બધા રાષ્ટ્રગીત ગાઈશું. તે હજી થઈ નથી ગયું, આપણે ભવિષ્યમાં કરવાનું છે, હજુ બાકી છે. એટલે આવા વાક્યોને આપણે સામાન્ય ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ. પાનું ફેરવીએ. તો અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળ આવે છે. તો એમાં વાક્યો છે મई में यहाँ सूरज तप रहा होगा, जब तुम यहाँ पहुँचोगे तब शाम हो रही होगी। जो इन वाक्यों में क्रिया रूप भविष्य काल में क्रिया जारी रहने की सूचना देते हैं। यह अपूर्ण भविष्य काल के क्रिया रूप है। શું કહેવા માંગે છે કે આ બંને વાક્યોમાં શું છે કે તે સમયે ક્રિયા ચાલુ રહેશે એવું દર્શાવવામાં આવે છે. ભવિષ્યકાળની કહે છે કે એ ટાઈમે આવી ક્રિયા રહેશે, અહીંયા આવું રહેશે એવી ક્રિયા દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે તે અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળ કે ક્રિયા કે સાથ અપૂર્ણ ભવિષ્યકાળ તેને કહેવામાં આવે છે. તેના અંતમાં રહા રહી રહે કા પ્રયોગ હોતા है। હવે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, अगले महीने तक तुम्हारी समस्या हल हो गई होगी, जब तक तुम आओगे तब तक यहाँ फसलें कट चुकी होगी। जो बराबर सांभळो, અહીંયા શું કહે છે, તમે આવશો એ ત્યારે ત્યાં સુધીમાં તો અહીંયા બધું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હશે. એવી જે સંભાવના દર્શાવતા વાક્યો છે તેને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ કહેવામાં આવે છે. બાળ મિત્રો, અહીંયા તમારું કાળનું પોઈન્ટ જે હતો વ્યાકરણનો તે પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પછીના પોઈન્ટમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જો તમને કંઈ ન સમજાણું હોય તો વારંવાર તમારે વિડીયો જોઈ લેવો. આવજો ત્યારે બાળ મિત્રો, બાય બાય.